ارمغان کی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ کامران قریشی پاکستان سے امریکہ تک قدم قدم پر بیٹے کا ساتھی تھا۔ ارمغان کے امریکی شہریوں سے فراڈ کی رقم کامران قریشی کے نام پر امریکی بینک میں کھولے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی تھی۔ کرپٹو کرنسی ایکسچینج نے ارمغان کے کرپٹو والیٹس کی ڈیٹیلز فراہم کر دی۔ صرف ایک کرپٹو ایکسچینج میں کوائن فیکٹری کے نام سے کھولے گئے اکاؤنٹ سے لنک 14 والیٹس بھی سامنے آ گئے ہیں۔ پیکسفل کرپٹو ایکسچینج کے صرف ایک اکاؤنٹ سے لنک بٹ کوائن کے 14 والیٹ سے ارمغان نے 3 سال میں 54 بٹ کوائن کی خرید و فروخت کی، جو تقریباً 1.7 ملین ڈالر یعنی تقریباً نصف ارب پاکستانی بنتے ہیں۔ یہ صرف ایک کرپٹو ایکسچینج کا فراہم کردہ ڈیٹا ہے۔ ارمغان نے کوائن فیکٹری پی کے نام سے نوونز کرپٹو ایکسچینج پر بھی اکاؤنٹ بنا رکھا تھا، جبکہ دیگر کرپٹو ایکسچینج پر بھی اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں۔ ارمغان امریکی شہریوں سے فراڈ کے ذریعے کمائے گئے ڈالرز کو امریکہ میں ہی بٹ کوائن میں تبدیل کر دیتا تھا۔ وہ امریکن بیسڈ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کوائن بیس سے بٹ کوائن خریدتا تھا۔ ارمغان کے فرنٹ مینز کے 4 مختلف پاکستانی بینکس میں 7 اکاؤنٹ بھی سامنے آ گئے ہیں، جو ارمغان خود آپریٹ کیا کرتا تھا۔ 2 اکاؤنٹ ایک لڑکی کے نام پر ہیں۔ ارمغان اپنے کال سینٹر کے دھندے سے کم از کم 4 لاکھ امریکی ڈالر ماہانہ کماتا تھا، یعنی 15 کروڑ پاکستانی۔ میں نے ارمغان کی کنڈلی نکال لی ہے اور میں حیران ہوں کہ ایک 28 سال کا لڑکا اپنی عمر اور قد سے بڑے بڑے کام کیسے کر رہا تھا۔ ارمغان اگر مصطفیٰ عامر کو قتل نہ کرتا تو اس کے کرائم کی سیریز شاید کبھی سامنے نہ آتی۔ وہ ایسا نوجوان تھا جس کے لیے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ وائٹ کالر کرائم کا کنگ تھا اور کال سینٹر کے دھندے کو جدید اور سائنسی بنیادوں پر چلا رہا تھا۔ 110 کمیونیکیشن کی طرح اس نے اپنے کال سینٹر میں سینکڑوں ایجنٹ نہیں رکھے ہوئے تھے، وہ صرف چند تھے، لیکن کمائی کروڑوں میں تھی۔ ارمغان کے کیسز پر جتنی انفارمیشن آپ کو میرے چینل سے ملتی رہی ہے، کہیں اور سے نہیں ملی ہوگی۔ یہ کیس آج بھی اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں اور میں انہیں سامنے لاتا رہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ راز آپ تک پہنچتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے کامنٹ مجھے مزید بہتر کام کرنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں امریکی شہریوں سے سالانہ 25 ارب ڈالر کے آن لائن فراڈ ہوتے ہیں، یعنی پاکستانی 7 ٹریلین روپے سے بھی زائد، اور ارمغان اس میں سے اپنا حصہ بٹور رہا تھا۔ ارمغان کے کال سینٹر کے دھندے اور اس کی منی لانڈرنگ سے متعلق میں 2 پروگرامز کر چکا ہوں، جس میں سے ایک اس کی منی لانڈرنگ سے متعلق ابتدائی معلومات پر تھا، جس میں FIA نے انٹرپول کو بھی خط لکھا تھا، اور دوسرا کال سینٹر بزنس پر ہے، جس کا مقدمہ FIA سائبر کرائم میں درج ہوا تھا۔ لیکن آج میں ارمغان کا پورا کھیل سامنے لاؤں گا، کال سینٹر سے لے کر منی لانڈرنگ تک، اور کچھ اس کے ماضی سے متعلق بھی۔ ارمغان نے کال سینٹر کا بزنس 2018 میں شروع کیا تھا، جو اس وقت صرف 1 سال چلا۔ وہ ساتھ ساتھ کراچی میں محدود پیمانے پر ویڈ بھی سپلائی کرنے لگا تھا، اور اس کے لیے وہ ویڈ برطانیہ، کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک سے اسمگل کرتا تھا۔ میں ارمغان پر اپنے دوسرے ہی پروگرام میں اس کے منشیات کا اسمگلر ہونے کے ثبوت سامنے لے آیا تھا۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ارمغان اس کی پیمنٹ ڈارک ویب کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ یہ ویڈ پاکستان پوسٹ، DHL اور دیگر کوریئر سروسز کے ذریعے پاکستان آتی تھی، لیکن 2019 میں پاکستان پوسٹ کے ذریعے آنے والے اس کے 2 پارسل کسٹم حکام نے پکڑ لیے۔ وہ ان کیسز میں گرفتار ہو گیا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے رکوشی اختیار کر لی۔ اس نے کسٹم کی مزید تفتیش کے دوران کال سینٹر کا بزنس سامنے آنے سے بچانے کے لیے اپنے تمام بینک اکاؤنٹس کا استعمال بند کر دیا۔ وہ ہر جگہ سے اپنی ڈیجیٹل موجودگی کے ثبوت بھی مٹاتا چلا گیا۔ اس نے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ای میل اکاؤنٹس بھی بند کر دیے، یہاں تک کہ اپنا موبائل نمبر بھی تبدیل کر لیا۔ ارمغان اس وقت بھی اپنے علاوہ دوسرے افراد کے نام پر بھی بینک اکاؤنٹس کھول کر انہیں آپریٹ کرتا تھا، اور اس وقت جو 5 اکاؤنٹ کھولے گئے وہ ارمغان کے علاوہ کامران قریشی، ارمغان کی والدہ سارہ خان اور ایمن کامران کے نام پر تھے، اور اس 1 سال میں بھی ان 5 اکاؤنٹس میں
10 करोड़ 83 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि अरमगान 2019 तक आइडा कम्युनिकेशन के नाम से कॉल सेंटर चला रहा था, लेकिन 2022 में जब वो अपने धंधे में लौटा तो उसने एम सोल्यूशन, एएमए कम्युनिकेशन और HMCS के नाम से काम शुरू किया। उसने 2 साल से ज़्यादा अरसा खामोश रहकर एक बड़े गेम की प्लानिंग की और इस बार इसके इरादे बहुत खौफनाक थे। अमेरिकी शहरी इसका खास टारगेट थे और गेम का नाम उसने रखा था ट्रेडमार्क कैंपेन। अरमगान ने इब्तिदा में सिर्फ 2 कॉल एजेंट्स को हायर किया, लीजा और सूफी, और फिर वो इस काम में ऐसा उतरा कि उसने पलट कर नहीं देखा। लीजा और सूफी और अरमगान मिलकर स्पूफिंग किया करते थे। वो ऐसी कॉलर आईडी इस्तेमाल करते थे जिससे कॉल रिसीव करने वाले को ये लगता था कि उसके पास आने वाली कॉल अमेरिका के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के ही रजिस्टर्ड नंबर से आई है। और ये स्पूफ कॉल्स कॉल सेंटर का पहला हथियार होता है, जो आपको यकीन दिलाता है कि आपको गलत कॉल नहीं की गई है। यह पाकिस्तान में भी बहुत होने लगा है, इसीलिए अब बैंक्स ये गाइडलाइंस भी जारी करते हैं कि वो कभी अपने रजिस्टर्ड नंबर से कस्टमर को कॉल नहीं करते। अरमगान और उसके साथी ऐसे अमेरिकी बिजनेसमैन को कॉल करते थे जिन्होंने हाल ही में अपनी प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क के लिए दरख्वास्त दी हो। ये दरखास्तें दीगर डिटेल्स के हमरा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के इस अमेरिकी इदारे की वेबसाइट पर पब्लिक होती हैं और अरमगान, लीजा और सूफी जब उन्हें कॉल करते तो खुद को अमेरिकी इदारे का ऑफिसर ही जाहिर करते। वो उन्हें अपनी सर्विसेज पेश करते और इसी दौरान उनसे उनकी ज़ाती मालूमात जैसे वालदा का नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर और बैंक डिटेल्स जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड की हसास मालूमात शामिल हैं वो हासिल कर लेते हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए वो उनके बैंक अकाउंट्स खाली करते थे। जनवरी 2023 में अरमगान ने अपने इस फ्रॉड के बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया था क्योंकि इस नए स्कीम से डॉलर बरस रहे थे। उसने नई हायरिंग की और रोजी.com और मुस्तकबिल.com जैसी वेबसाइट्स के ज़रिए 20 मज़ीद कॉलिंग एजेंट भर्ती कर लिए। ये तमाम एजेंट्स फर्जी नाम इस्तेमाल किया करते थे, जैसे जूमा का फर्जी नाम ओलिविया या एंजिला था। अरमगान अपने एजेंट्स को खुद एक स्क्रिप्ट दिया करता था जिसके मुताबिक उन्हें अमेरिकी इदारे का ऑफिसर बनकर बात करना होती थी। ये निहायत कारामद साबित हो रहा था और सिर्फ 5 माह में अरमगान के कॉल सेंटर ने सैकड़ों अमेरिकी शहरियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी बैंक डिटेल्स और दीगर इंतहाई अहम मालूमात हासिल की और फिर इनकी बुनियाद पर उनके बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए। और अरमगान जिसने 2022 में 120 गज के किराए के दफ्तर से अपने कॉल सेंटर का धंधा शुरू किया था, सिर्फ 1 साल में ही वो 1000 गज के पुरतायुश बंगले में मुंतकिल हो गया और सितंबर 2024 तक वो वहीं से अपना कॉल सेंटर चलाता रहा। वैसे तो ये बात मैं अपने एक पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ, यहाँ मुख्तसरन दोहरा रहा हूँ कि अरमगान के कॉलिंग एजेंट्स अमरीकी शहरियों से जो भी खुफिया मालूमात हासिल करते उन्हें ख़ास तौर पर तैयार करदा एक सिस्टम के ज़रिए अरमगान तक पहुँचाया जाता था। इसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता था और इसे अरमगान ने खुद डिज़ाइन किया था ताकि ऐसी तमाम मालूमात को दीगर एजेंट से खुफिया रखा जा सके। अब ज़रा अमेरिका चलते हैं, ये जानने के लिए कि अरमगान अमेरिकी शहरियों के बैंक अकाउंट्स खाली करने के बाद डॉलर कहाँ मुंतकिल करता था और कैसे। और यहाँ किरदार सामने आता है कामरान कुरैशी का, अरमगान का वालिद। कामरान कुरैशी के नाम पर अमेरिका की रियासत मेरीलैंड में ट्रस्ट नामी अमेरिकी बैंक में अकाउंट खोला गया था और ये अकाउंट रजिस्टर्ड था 24/7 नामी एक कंपनी के नाम पर। ये एक सोलो प्रोप्राइटरशिप थी जिसका होल सोल मालिक था कामरान कुरैशी और ये कंपनी भी अमेरिकी रियासत मेरीलैंड में ही रजिस्टर्ड कराई गई थी और यही वो अकाउंट था जो अरमगान के धंधे का मास्टरपीस था। अमेरिका में फ्रॉड से बनने वाले तमाम डॉलर इस अकाउंट से लिंक मर्चेंट प्रोसेसिंग टर्मिनल्स और पेमेंट गेटवेज से गुजरकर कामरान कुरैशी के इस अकाउंट में पहुंचते थे। ऐसे 7 मर्चेंट प्रोसेसिंग टर्मिनल्स और पेमेंट गेटवेज अरमगान के केस में सामने आए हैं, जिसमें म्यूरिक पेमेंट्स, पेमेंट क्लाउड, Authorize.net, स्टॉक्स पेमेंट्स, नेशनल प्रोसेसिंग, पे आर्क और मर्चेंट वन शामिल है। मेरे पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अरमगान ने बाद में क्रूजर्स के नाम से भी ऐसे बैंक अकाउंट खोले जो किसी न किसी कंपनी के नाम पर थे और ये अकाउंट्स भी इन्हीं
मर्चेंट प्रोसेसिंग टर्मिनल्स और पेमेंट गेटवे से लिंक थे। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ऐसी तमाम पेमेंट्स को झूठी डिस्क्रिप्शंस दी जाती थी ताकि इन ट्रांजैक्शंस को बैंक के एंटी फ्रॉड सिस्टम पकड़ ना सकें, जैसा कि यूएस पेमेंट ट्रेडमार्क, यूएस ट्रेडमार्क पेमेंट, यूएसए ट्रेडमार्क पेमेंट या यूएस ट्रेडमार्कर्स। सिर्फ एक आध लफ्ज़ को ही आगे पीछे करके पेमेंट्स को लीगल बनाने की कोशिश की जाती थी और इसमें असल कोशिश ये होती थी कि ऐसा लगे कि सरकारी इदारों से मुतालिक पेमेंट्स। और जब ये डॉलर्स इन बैंक अकाउंट्स में पहुंच जाते तो यहाँ से अरमगान का दूसरा खेल शुरू होता था। अरमगान इन डॉलर्स से क्रिप्टो करेंसी, ख़ास तौर पर बिटकॉइन खरीदता था और ये बिटकॉइन खरीदे जाते थे अमेरिकन बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस से। अरमगान ने अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस पर भी कई वॉलेट्स खोल रखे थे और इन वॉलेट्स के लिए जो ईमेल इस्तेमाल हुए हैं उनसे एक नया नाम सामने आया, सरवत हुसैन का। सरवत हुसैन के नाम पर बनी हुई 2 ईमेल आईडी से कॉइनबेस पर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स खोले गए थे, जबकि एक और ईमेल द रियल बॉस के नाम से। अरमगान कॉइनबेस से खरीदे हुए ये बिटकॉइन आगे अपने मुख्तलिफ क्रिप्टो वॉलेट्स पर ट्रांसफ़र कर देता था और ये क्रिप्टो वॉलेट्स बनाए गए थे कॉइन फैक्ट्री पीके के नाम से, P2P एक्सचेंज पैक्सफुल और नोवंस पर। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि अरमगान के इस खेल को आसान अल्फाज में समझा सकूं और अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो माजरत ही कर सकता हूं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अरमगान की मनी लॉन्ड्रिंग पर। अरमगान को पाकिस्तान में अपना कॉल सेंटर चलाने और अपनी अय्याशियों के लिए भी खतीर रकम की ज़रूरत पड़ती थी और यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक भयानक जुर्म तस्वुर किया जाता है और अरमगान ने ये जुर्म बार बार किया है। उसे जब भी पाकिस्तान में पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वह अपने क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट से बिटकॉइन किसी तीसरे शख्स के वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर देता था और वहाँ से रकम पाकिस्तान में अरमगान के मखसूस बैंक अकाउंट्स में पहुँच जाती थी। आपको याद होगा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के एक इजलास में FIA की जानिब से ऐसे 40 बेनामी अकाउंट्स की डिटेल्स पेश की गई थी जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी बैंकों में थे और इन अकाउंट्स में 17 अरब रुपए से ज़ायद की ट्रांजैक्शंस सामने आई थी और इन्हीं अकाउंट से अरमगान के 3 मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र होने का भी उस वक्त इंकशाफ हुआ था। लेकिन नई बात यह है कि ये 3 नहीं बल्कि 7 अकाउंट्स हैं जिनमें करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र होते रहे हैं और इन अकाउंट्स को ऑपरेट अरमगान किया करता था। इनमें से 2 अकाउंट एक लड़की के नाम पर भी हैं। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। अरमगान के इस केस में बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। ये 7 अकाउंट्स किसके हैं और एक क्रिप्टो करेंसी P2P एक्सचेंज से अरमगान के वॉलेट्स की मिलने वाली डिटेल्स में क्या है। अरमगान ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो पैसा पाकिस्तान मंगवाया उससे उसने क्या खरीदो फरोख्त की, ये सारा रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ये सब और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।